हेलो कैंडिडेट्स, आईपीसी मॉक 5th में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ ए कॉरपोरेशन अराइजेज व्हेन। कॉरपोरेशन की क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अराइज होती है? एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ कॉरपोरेशंस बिजनेस बाय द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स। बी, an offense is committed in the course of corporation's business by a person in control whose thought or intent becomes thought or and intent of the corporation. Option C, both A and B, and D, none of them. Answer is option C, A and B. Next is question number 62. Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt is dealt under. तो एक आदमी को डरा धमका के उससे काम निकलवाया जाता है, वो कौन से सेक्शन में डील करता है? एक्सटॉर्शन 385, 386, 387 या 388? आंसर इज 386 ऑफ आईपीसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द वर्ड जज अंडर सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी? तो पढ़िए और इसका आंसर बताइए। Answer is all of them. Next is person voluntarily causing hurt in committing or attempting to commit robbery or any other person jointly concerned in such robbery is dealt under direct section है। कौन सा सेक्शन दिया गया है? 394, 395, 396 या 397? Answer is 394. Next is which of the following does not fall under the category of the word judge एज कोइंड इन सेक्शन 19? इनमें से कौन सा फॉल नहीं करता जज के अंडर, मतलब जज की डेफिनेशन में इनमें से कौन सा फॉल नहीं करेगा? मजिस्ट्रेट, मेंबर ऑफ पंचायत, कलेक्टर या बिजनेसमैन? आंसर इज बिजनेसमैन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड क्लोज 11 एंड एक्सप्लेनेशन 4 इन द सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी? एक्ट 34 1920, adoption of laws order 1950, act 2nd 1950, anti corruption act 1964? Answer is adoption of law order 1950, option B. Next is in which of the following case the principle was laid down by the Supreme Court that where a subsequent act incorporate provisions of a previous act, the borrowed provisions come an integral and independent part of the subsequent act and are totally unaffected by any repeal or amendment in the Prevention Act does not apply? Options पढ़िए। Answer is option D, all of them. Next is which of the following is not relevant to the practice and procedure of section 22 of IPC? कौन सा relevant नहीं है? ऑप्शन ए है does not provide definition of public servant. B, no court can take cognizance of any offence against the public servant except with the previous sanction of the central government and state government as per the provisions of section 197 of CRPC. C है the protection is available to a person if on the date of commission of offence he was public servant irrespective of his subsequent retirement, resignation, dismissal or even removal. D है deals with extraterritorial ability but does not define any substantive offence or procedure. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एक्स ओनर है एक प्रॉपर्टी का। ही ओव्स सम मनी टू वाई, उसने वाई को कुछ मनी दी। एक्स हैज़ नॉट बीन एबल टू पे द ड्यू, एक्स बचा हुआ नहीं दे पाया उससे। एंड वाई फोर्सिबली टुक पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो वाई ने उससे उसकी प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर लिया उसकी इच्छा के बिना। टू प्रेशराइज हिम इनटू पेइंग अप हिज डेट, कि उसने जो उधार में पैसे ले रखे थे उससे वाई से, उसको ताकि वो उसे दे दे उसके पैसे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? वाई हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू डू सो, एक्स नो लॉन्गर हैज़ राइट ओवर हिज प्रॉपर्टी, वाई इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट या नन ऑफ द अबव? आंसर इज वाई इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट इज
In a certain case in Delhi, the accused proposed marriage of his son with the gentleman of a daughter who was pregnant with someone else's child, a fact that has not been concealed. इसमें लिख रखा है कि वो छिपाया नहीं गया था. However, he concealed the fact that his son is suffering from a mental disorder. The gentleman marries his daughter to his son, then the accused गिल्टी होगा या नहीं गिल्टी होगा, बताइए. आंसर is prima facie guilty of cheating due to element of wrongful gain involved. Option B is correct. Next is oral threat or inducement allegedly given by lawyers to approver not to give any statement against accused amounts to commission of offence, does not amount to commission of offence, can attract discretion of court towards such offence, या none of the above. Answer is does not amount to commission of offence, क्योंकि lawyer और आपको पता ही है lawyer litigates और उसके privileges. Next is theft under section 379 IPC is not tenable if property is not a movable property, property cannot be moved in order to such taking, subject matter is not a property, या both A and B. Answer is both A and B. Next is if the appellants are liable to be convicted only for their individual act, then section 34 apply, section 34 IPC cannot apply, 149 apply, या फिर 149 cannot be invoked. Answer is section 134 cannot be invoked. Option B. Next is when all the incriminating facts and circumstances are found to be incompatible with the innocence of the accused, then the inference of guilt can be justified. The inference of guilt cannot be justified. Benefits of doubt should be given. In none of the above. Answer is the inference of guilt can be justified. Option A. Next is in which case the Supreme Court held that if a student and teacher fall in love with each other, it does not mean that the teacher has taken undue influence of his official position. तो ये कौन से केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ओमकार प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज अंडर द इंडियन पीनल कोड हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट? चाइल्ड बिलो 7 years of age, बिलो 8 years, या बिटवीन 7 to 10 years, या 7 and 12 years के बिटवीन होते हैं. हैविंग मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आंसर इज ऑप्शन डी. 7 और 12 के बीच है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी है, समझ है इतनी, इसलिए वो लाइबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन place where such person is found, place where crime committed within local area, the nationality of the offender, या none of the above. Answer is place where crime committed within local area. Next is the imprisonment for the offence of molestation under IPC amounts to imprisonment up to 2 years, up to 1 year, up to 6 months, या 3 months. Answer is up to 2 years. Option A. Next is in which of the following cases the Supreme Court held that doctors cannot be held guilty only because something has gone wrong? कौन से केस में बोला गया था? आंसर इज मलाया कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार. ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज as per section 195A of IPC, which was inserted by the Criminal Law Amendment Act 2005, the offence of threatening any person to give false evidence is punishable under imprisonment up to 7 years or with fine or with both. Option A. Next is a person
as per section 153AA of IPC, which was inserted by the CRPC Amendment Act 2005, the punishment of knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms is punishable with तो पनिशमेंट बतानी है इसमें भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं. आंसर इज ऑप्शन ए 6 months with fine up to 2000 rupees. Next is the Information Technology Amendment Act 2008 with effect from 27th October 2009, which amended the Indian Penal Code in section 464, substituted electronic signature for digital signature, documentary evidence, डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफाइड सिग्नेचर. आंसर इज डिजिटल सिग्नेचर. नेक्स्ट इज एग इज पॉइजन. पॉइजनड हलवा. हलवा आप सबको पता ही है, एक स्वीट डिश है. टू बी विद इंटेंशन टू किल हिम. उसने उसमें जहर मिला दिया उस बी को मारने के लिए. बी एट 1 स्पून एंड कीप इट ऑन द साइड. उसने एक चम्मच खाया और साइड में रख दिया. सी हु वाज सिटिंग देयर. सी वहाँ बैठा हुआ था, उसने वो लिया और खा लिया. सी मर गया. तो एक किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा? कल्पेबल होमिसाइड के लिए या फिर सी के मर्डर के लिए, या इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर एज ही नेवर इंटेंडेड टू किल सी, या कोजिंग ग्रीवियस हर्ट. बताइए. आंसर इज ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ सी. नेक्स्ट इज द टर्म हार्बर defined under Indian Penal Code 1860 does not include. हार्बर आपको पता ही है, हार्बर मतलब मदद करना उस पर्सन की. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इनमें से? सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर, सप्लाइंग ए पर्सन मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, असिस्टिंग ए पर्सन टू एवेड एप्रीहेंशन प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, फैसिलिटेटिंग द कमीशन देयरऑफ. आंसर इज option D. Next is when a woman was taking bath in her bathroom, X captures his image in his mobile and uploaded on her Facebook page. तो कौन सा ऑफेंस किया है X ने? उसने उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ खींची और उसको अपलोड भी किया. तो सेक्सुअल असोल्ट होगा, इंसल्टिंग मोडेसिटी होगा, वोयरिज्म होगा या स्टोकिंग होगा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वोयरिज्म. नेक्स्ट इज दो स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से आपको बताना है ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, या फिर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं. आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में है. एडीए में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले थे. देखते हैं. देयर इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इज इन रॉबरी. सेकेंड है द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज़ कपल्ड विद डेंजर टू लाइफ. तो बताइए कौन सा ठीक है कौन सा नहीं. बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही हैं ये. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज इंडियन कोर्ट्स हैव jurisdiction टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन ए फॉरेन कंट्री. ठीक बात है. इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव jurisdiction टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय ए फॉरेनर इन इंडिया. तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 are true. Next is the maxim actus invito factus non est mens actus finds application in section 94 of IPC. Second है the maxim de minimis non curat lex. ये सेक्शन 95 में दिया गया है. तो इसका आंसर है both are true. In which case the Supreme Court of India has said that the time has come when section 309 of IPC should be deleted by Parliament. कौन से केस में बोला गया था कि 309 डिलीट कर देना चाहिए? समय आ गया है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इच्छा मृत्यु दी गई थी. नेक्स्ट इज said is carried off by a tiger.
जेड को टाइगर ले जाता है। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंगली टू बी लाइकली दैट द शूट में किल जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड। ए ने उसको जेड को बचाने के लिए उस पर टाइगर पे फायर किया। उसको पता था कि ये जेड को भी लग सकती है, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था। उसने गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए ऐसा किया था। तो ए की जो बुलेट है वो जेड को एक घाव दे जाती है। तो क्या ए गिल्टी होगा? बताइए। आंसर इज नो ऑफेंस। उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, वो कोई ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज in which of the following cases recently the Supreme Court has upheld the constitutional validity of criminal statute in offences against the order of the nature? कौन से केस में दिया गया है ये जजमेंट? आंसर इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज robbery is dacoity when the minimum number of persons committing robbery is रॉबरी में मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं? आंसर इज बी 5 पर्सन्स। नेक्स्ट इज बताइए। श्रुगन चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, किससे रिलेट करता है ये? आंसर इज कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कम्यूटेशन से रिलेट करते हैं ये। नेक्स्ट इज A claiming to be a family planning expert give X some chemical। ये जो है वो फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट है और उसने X को कुछ केमिकल दिया। उस केमिकल को खाने के बाद जो बच्चा था X के गर्भ में वो मर गया। तो A ने कौन सा ऑफेंस किया है? नो ऑफेंस, मर्डर का ऑफेंस, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या मिसकैरेज। आंसर इज ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज ए बाय falsely pretending to be in the civil services intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have a credit goods for which he does not mean to play। A has committed कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने चीटिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज आर वर्सेस मैग्नोटन इज द केस रिलेटेड विद इंसैनिटी एज ए डिफेंस। तो बताइए, आर वर्सेस मैग्नोटन का केस इंसैनिटी से डील करता है क्या? यस। ए वर्सेस गोविंदा इज द केस रिलेटेड विद कॉमन इंटेंशन। ए वर्सेस गोविंदा का केस किससे रिलेट करता है? क्या कॉमन इंटेंशन से रिलेट करता है वो? नहीं। तो आंसर इज ए इज ट्रू बट टू इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस अटेम्प्ट टू किल बी। अनसाउंडनेस के बेस पे किया है, उसने बी को किल करने का अटेम्प्ट किया है। बी इन अटेम्प्टिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ कोज ग्रीवियस हर्ट टू ए। उसने खुद को बचाने के लिए ए को ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया। हियर A is liable for attempt to murder and B is liable for causing hurt. A commits no offense and B is liable for grievous hurt. A commits no offense and A is liable to attempt to murder. या फिर दोनों ही इस लाइबिलिटी से बच जाएंगे? बताइए आंसर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दोनों बच जाएंगे क्योंकि वो अनसर्टनेस है और वो दूसरा जो है वो अपने डिफेंस में उसको हर्ट पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ IPC प्रिपरेशन इज पनिशेबल। कौन से सेक्शंस में पनिशेबल है प्रिपरेशन? सेक्शन 122, 126, 399, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइन qua non for making a person criminally liable? Actus reus, mens rea, motive, या all of the above? Answer is motive. Next is to which of the following offences the apex court judgment in Abhyanand Mishra versus State of Bihar is related to? तो इस केस की जजमेंट किससे रिलेट करती है? कौन से सेक्शन से रिलेट करती है? सेक्शन 420 and 511 of IPC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज
What should be the age of minor to constitute the offense of kidnapping? किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए कोई एज दी गई है क्या, या कौन सी एज दी गई है बताइए? बिलो 16 ईयर इन केस ऑफ मेल एंड बिलो 18 ईयर इन केस ऑफ फीमेल, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी with Z in a house intending there to cause wrongful loss to Z shoots the horse. Under what section of IPC A shall be charged with? कौन से सेक्शन के अंडर चार्ज होगा ये? सेक्शन 429 ऑफ IPC, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज A has consensual sexual relation with Z's wife. She gives to A valuable property which A knows to belong to her husband Z, and she has no authority from Z to give. उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसके हस्बैंड की चीज़ देने की. A takes the property dishonestly, और A ने वो dishonestly ले ली उस पर. Which one of the following is correct? बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑफेंस लगेगा उस पर? ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज अडल्ट्री इज़ एन ऑफेंस कमिटेड. अडल्ट्री जो ऑफेंस है विद द कंसेंट ऑफ मैरिड वुमेन, विद द कंसेंट ऑफ वुमेन, विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन बट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, या विद द कंसेंट ऑफ ए माइनर गर्ल. इसकी कंसेंट होगी ऑप्शन ए, विद द कंसेंट ऑफ ए मैरिड वुमेन. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is not defined in IPC, is defined in IPC, is not treated as equivalent to insanity, is not general exception in IPC. Answer is not defined in IPC, option A. Next is State of Andhra Pradesh versus R. Punaiya case deals with distinction between which of the following sections. कौन से sections के बीच distinction बताता है ये केस? Section 299 and 300, option B. Next is which section of Indian Penal Code provides the offence relating to the Army, Navy and Air Force? कौन से सेक्शन से आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बताते हैं जो प्रोविजंस? सेक्शंस 131 to 140, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज in which case the court made a clear distinction between common intention and similar intention. कौन से केस में बताया गया है डिफरेंस इन दोनों के बीच में? आंसर इज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट द स्टोलन प्रॉपर्टी. कौन सी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए पोजेशन वेयर ऑफ वाज ऑब्टेन्ड बाय चीटिंग. चीटिंग के द्वारा जो पोजेशन दी गई है वो. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग इज कमिटेड. जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कौन से उसमें किया गया है बताइए? आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. सभी में किया गया है, ये सभी जो दे रखे ए, बी एंड सी तीनों में ये हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस किया गया है. तो ये थे आज के क्वेश्चंस. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.